Hello children, welcome back to Maths Stimulus. This is continuation of maximum minima word problems. It is part 3. We have already done its part 1 and part 2. So let us see quickly questions. Before going to the question, you just have a look on the working steps to solve the word problems. These are 5 steps: R, S, T, U and V. I have just simplified whole process in these 5 steps: R, S, T, U, V. In R for recognize your sum. Here you need to find what is to prove and to find in the question. About which figure question is talking about: cone, cylinder, sphere, circle, etc. What is given in the question? Length, parameter, sum, any dimension. You need to take care what is given in the sum. And finally, what is to maximize and minimize in the sum. So these are the 4 points which you need to take care, which you need to recognize in the sum. In the step 2, S for start. You will start the sum with the formula which is to maximize or minimize. Okay, now what is the step 3? You need to take care. Formula which is to maximize, minimize must be in single variable. If it is not, then use the given, what is given in the question, to convert it into single variable. And this formula, then finally after converting it into single variable, this will be your fx in the sum. Fourth, use derivative of fx to find critical point. And fifth, view sign of double derivative at the critical point, whether it is less than or greater than. Accordingly you will decide maxima or minima. So now I'm moving on the question, your word problem. Very important word problem here is on the screen. Children, see, question says, show that the vertical angle, show that semi-vertical angle of right circular cone. Show that. First step, recognize your sum. Show, to show क्या है आपको? Semi-vertical angle. What is the meaning of semi-vertical angle of a right circular cone? Suppose this is a right circular cone and this angle is called vertical angle, and semi means half of the vertical angle. So this is semi-vertical angle. Let, we are assuming it is alpha, so let alpha be the semi-vertical angle of the cone. Okay, given surface area, what is given in the question? Surface area of cone. What is the surface area of cone? Curved surface area pi RL plus base area, base is circle, pi r square. So surface area of cone is pi RL plus pi r square. Okay, what next question is saying? And the maximum volume. Which quantity is to maximize? Volume of the cone. So volume of cone is 1/3 pi r square h. Again read the question. Show that semi-vertical angle is sine inverse 1/3. So what is to show? Semi-vertical angle alpha is a sine inverse 1/3. Now these are the all 4 steps. What question is saying? Surface area is given, volume to be maximized, alpha is semi-vertical angle, and alpha आपको show करना है कि it is sine inverse 1/3. अब स्टेप 2 पर हमें आना है. तो स्टेप 2 में वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला विच इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और मुझे यहाँ क्या मैक्सिमाइज करना? वॉल्यूम. सो स्टेप 2 पे यू विल टेक वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ से मेरा क्वेश्चन शुरू होगा. अब देखो बच्चों, यहाँ 2 वेरिएबल है आर एंड एच. तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है टेक केयर, आपका सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए. अब यहाँ आर एंड एच 2 वेरिएबल है. विद द हेल्प ऑफ गिवन हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. और गिवन क्या है मुझे? सरफेस एरिया S. तो सी देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया में ये कांस्टेंट है, बट इसके अंदर ऑलरेडी R और L 2 वेरिएबल हैं.
R और H वॉल्यूम में है, तो हमें इसको पहले H को मैं वॉल्यूम में ही बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है यहाँ पे दिस इज L हाइट and the R is the radius of the cone, H be the height of cone. तो by the Pythagoras theorem in triangle OAB, what you will get? L square is equal to H square plus R square. तो यहाँ से आप H को क्या निकाल सकते हो? अंडर रूट L square माइनस R square. तो शिफ्ट कर दो यहाँ, वैल्यू ये पुट कर दो H की. लेट दिस इज योर इक्वेशन, सरफेस एरिया की इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 and let this is equation 3. From equation 3 in equation 2 pi r square and h की वैल्यू l square minus r square. बेटा ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हुआ अभी तक हमारा, ये हमें क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल हो गया l r और h, तो हमें यहाँ से भी दो वेरिएबल रखने हैं, h हटा के हमने l और r में ले आए. अब वापस वही जो हमारा गिवन होता है उससे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं हम. सो यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास s क्या है? इक्वेशन 1 इज गिविंग यू s पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. देखो r को आप सेपरेट कर नहीं सकते हो, तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई r, आपको l मिल जाएगा. बस अब इस l को हमने, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप, आपके पास यहाँ तक इक्वेशन 4 बन गई है, ये इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 से या 4 में l की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो वॉल्यूम आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा? देखो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ तक था, सेकेंड स्टेप में आपने कन्वर्ट कर दिया इसे दो वेरिएबल के अंदर, लेकिन अभी यूनिक वेरिएबल में आने के लिए हमारा ये स्टेप चल रहा है, कंटिन्यूड है अभी हमारा थर्ड स्टेप. एल की वैल्यू आप रखोगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर. अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. अब देखो यहाँ पर आपको वही चीज़ आ गई जो मैंने लास्ट मॉड्यूल में आपको समझाई थी कि यदि आपके पास स्क्वायर रूट में राइट साइड फंक्शन आए तो बेटर क्या होगा, यदि आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन. तो आपके पास वी स्क्वायर बनेगा. इफ यू विल प्रूव वी स्क्वायर एज मैक्सिमम, दिस इम्प्लाइज वी इज मैक्सिमम. सो सी फुल प्रेजेंटेशन, यहाँ तक हम आ चुके हैं वी में. अब इसके बाद वी स्क्वायर करिए, वी स्क्वायर को एक नया नाम दे दो z, जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई. नाउ z, दिस इज आवर फाइनल फंक्शन. सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल रीच हेयर, दिस इज नाउ z, वी स्क्वायर z. अब आपको फंक्शन मिल गया. फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन करो, जीरो रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो. डिफरेंशिएशन कर लिया, जीरो रख के s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो आपके पास वेरिएबल क्या था? r, s क्या है? कांस्टेंट गिवन है, तो डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हुआ है. और अब यहाँ से r की वैल्यू आएगी, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है. डबल डेरिवेटिव को चेक करो, लेस देन आ गया. लेस देन आने का मतलब क्या है? वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, बाय डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम हो गया. यहाँ तक सारे स्टेप कॉमन है आपके फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के. तो वॉल्यूम मैक्सिमम आपका आ चुका है. हमने लास्ट शो दैट वाला स्टेप देखो, हमने शो करना था अल्फा मेरा साइन इनवर्स 1/3 है. चिल्ड्रन देखो ये एक ट्राइंगल है आपका इस टाइप का, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज एंगल अल्फा. आपका एंगल जिस लाइन पर बनता है उसे हम कहते हैं बेस लाइन. ये है बेस. अगर मैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखूं तो इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. अगर आपको यहाँ से साइन अल्फा निकालना है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हमारे इस ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? r. तो यहाँ साइन अल्फा आपका क्या होगा? r अपॉन l. सो आपको निकालना है r अपॉन l क्या होगा क्वेश्चन के अंदर. उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, हमेशा हम क्रिटिकल पॉइंट को गिवन में रखते हैं. तो देखो क्रिटिकल पॉइंट आपका ये आ रहा है, इसे ऊपर वाले स्टेप को देखो तो s इज इक्वल टू s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर 0. तो यहाँ से s आपका है 4 पाई आर स्क्वायर. ये वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 2 में रखो तो ये हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या बचा? 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर. तो आप कहाँ आ गए? l इज इक्वल टू 3r. ये आपको ऐसे मिलेगी वैल्यू. तो आपने जब
s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 में रखा, आपको l इज इक्वल टू 3 आर आ गया। तो देखो आपको लाना क्या है, r अपॉन l, तो यहाँ से r अपॉन l क्या आ गया 1/3। एंड व्हाट इज r अपॉन l, साइन अल्फा, और व्हाट इज अल्फा, साइन इनवर्स 1/3, हैंस प्रूव्ड। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो बेटा जो भी एंगल वाले क्वेश्चन है उसमें पहले आप अपनी फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल जो भी बन रही है उसमें चेक कर लो कि अगर साइन अल्फा लाना है तो साइन के लिए आपकी कौन सी साइड्स बनेगी। और यहाँ पास मेन पॉइंट आपका इस पॉइंट पे ये था, एंगल जिस लाइन पे बनेगा वो बेस होगा। आपने आंख बंद करके ये नहीं देख लेना कि ये एंगल, ये r इज नॉट बेस, बेस इज h, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर उस एंगल के सामने वाली साइड होगी। ये लॉजिक याद रखोगे, हर क्वेश्चन ठीक से होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है। ओके, दिस क्वेश्चन सेज प्रूव दैट, रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, क्या गिवन है हमें, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज टू प्रूव, पेरीमीटर। जो हमें क्वेश्चन ने प्रूव करने को कहा है पेरीमीटर, किस फिगर का देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो सपोज करो राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस, लेट कर लो, इसका ये बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है। सो लेट, हमने कर लिया बी बी द बेस, P perpendicular and H is hypotenuse of right angled triangle. Given hypotenuse, क्वेश्चन ने क्या दिया है, given hypotenuse means H आपका क्वेश्चन में कांस्टेंट ट्रीट होगा, given hypotenuse है ये। ओके, prove that perimeter of right angled triangle of given hypotenuse is maximum. प्रूव दैट पेरीमीटर मैक्सिमम। तो हमें क्या मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखो P हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम पेरीमीटर को सपोज करते हैं हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम, B प्लस P प्लस H। When triangle is isosceles, मतलब शो क्या करना है आपको, देखो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन आपको इसमें शो ये करना है कि जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो देखो हाइपोटेन्यूज तो कभी भी इक्वल हो नहीं सकता किसी भी साइड के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए आपका परपेंडिकुलर ही बेस के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको टू शो है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। तो क्वेश्चन की रिकॉग्निशन हो गई, फिगर व्हाट यू नीड टू लेट, राइट, और व्हाट इज गिवन और व्हाट इज टू मैक्सिमाइज। ओके, ये मैक्सिमाइज करना है। तो स्टेप 1 पूरा हुआ। अब स्टेप 2 बताइए कहाँ से शुरू करेंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट, जेड से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमें ये मैक्सिमाइज पैरामीटर मैक्सिमम शो करना है। अब देखो एच तो है कांस्टेंट, हमें इससे कोई डर नहीं है। उसके अलावा इसमें 2 वेरिएबल हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, और गिवन हमें क्या है हाइपोटेन्यूज, उसकी हेल्प से हमें एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हाइपोटेन्यूज देने का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, आप इस ट्राइंगल में राइट पाइथागोरस लगा सकते हो। इसका मतलब ये है, यू नो इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज देयर, राइट। अब यहाँ से आप या तो P की वैल्यू निकाल लो या B की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि H कांस्टेंट है। सपोज आप यहाँ से B की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपके पास बनेगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आप यहाँ B को रिप्लेस करोगे तो B वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर द रूट। और अगर आप यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो P आपका हो जाएगा सेम, अगर आपने P की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट। आप किसी को भी अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आप या तो B को रिप्लेस करो या P को रिप्लेस करो। सपोज आप P की वैल्यू रख रहे हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में h। अब बेटा स्टेप 2 पूरा हो गया। आपको देखो h तो कांस्टेंट है और b आपका वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया पैरामीटर z, आपने z से पैरामीटर को शो किया है। नाउ दिस इज योर fx। बस क्वेश्चन हो गया। अब आप dz बाय db निकालोगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, b
बी वेरिएबल है आपका। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट डी जेड अपॉन डी बी। इसको 0 रख के b की वैल्यू निकालोगे, डबल डेरिवेटिव चेक करोगे, वो हमेशा लेस देन 0 आएगा क्योंकि मैक्सिमम प्रूव करना है। और फिर क्रिटिकल पॉइंट को आप गिवन में रख के इस इक्वेशन में जो गिवन है आपकी, ये इक्वेशन बनी है आपकी यहाँ से, इसमें रख के आप चेक करोगे p इज इक्वल टू बी आना चाहिए। यहाँ एक पॉइंटर बताना चाहूँगी बेटा, यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है आपका राइट साइड में, लेकिन यहाँ स्क्वायर करने से बोथ साइड काम नहीं चलेगा क्योंकि सम में है 3 टर्म्स, मल्टीप्लाई में होती या सिंगल केवल आपके पास स्क्वायर रूट होता तो इस स्टेप पे स्क्वायर कर सकते थे। अब इस स्टेप पे स्क्वायर मत करना बोथ साइड, आपको और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जेड स्क्वायर करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो सी फुल प्रेजेंटेशन आपने लेट कर लिया, लेट करके आप p इक्वल टू स्क्वायर बी स्क्वायर पे आ गए। देखो यहाँ ये रहा फंक्शन आपका, डिफ्रेंशिएट करो, 0 के इक्वल रख के आपके पास ये b इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। डबल डेरिवेटिव में लेस देन 0 तो मैक्सिमम हो गया, और आपने b की वैल्यू यहाँ रख दी, आपके पास आ गया वही p भी h बाई रूट 2 आ गया, b h बाई रूट 2, p भी h बाई रूट 2, और आपका प्रूव क्या हो गया, p इज इक्वल टू b। सो p इज इक्वल टू b है, तो आपका गिवन ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल आपका हो गया, जो भी हमारा ट्राइंगल है यहाँ आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। मैंने लास्ट स्लाइड पे किया है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, आपको शो करना था ना p इज इक्वल टू b, तो देखो ये रहा b की वैल्यू h बाई रूट 2 एंड p की वैल्यू भी h बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू b। हैंस प्रूव्ड कि आपका वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ही होगा जिसमें पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा, पैरामीटर मैक्सिमम होगा व्हेन हाइपोटेन्यूज गिवन होगा। ओके, यस आई नो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया है आपको। बेटा अगर अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, आपकी प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पैरामीटर वर्ड को केवल मैं एरिया से चेंज कर दूँ, तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। यस आई नो, तो दिस क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। हियर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रूव दैट एरिया of right angle triangle given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles। सिर्फ एरिया चेंज्ड है, आपको क्या करना होगा, जहां मैंने पैरामीटर लेके चली थी यहाँ आपको एरिया लेकर चलना है ट्राइंगल का, और फिर उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यू करना है। ओके, नाउ सी here is one more question। if sum of length of hypotenuse and side of right angled triangle, right angled triangle में क्वेश्चन की रिकॉग्निशन चल रही है, क्या गिवन है, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, पहले लेट कर लेते हैं बी पी एच, ठीक है, यहाँ पे लेट करके आप लिख दीजिएगा व्हाट इज बी, व्हाट इज पी, व्हाट इज एच। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, या तो h प्लस बी कर लो या h प्लस पी कर लो, कोई एक साइड बोली है उन्होंने, ठीक है, तो सम h प्लस पी मैंने लिखा, ओके, इज गिवन मीन्स दिस इज गिवन, ओके, तो s क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो गिवन है वो कांस्टेंट, तो s आपका कांस्टेंट क्वेश्चन में ट्रीट होगा, और इसको यूज करोगे आप वेरिएबल को रिमूव करने के लिए। क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमाइज आपको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। दिस इज एरिया, दो वेरिएबल b एंड p, ओके, दिस इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। एंगल बिटवीन, जो ये दो साइड का सम दिया है उन दोनों के बीच का एंगल जब π/3 होगा, मीन्स हमें शो क्या करना है, टू शो कि एंगल बिटवीन h एंड p, अगर मैंने h एंड p लिया है तो बिटवीन h एंड p, और अगर मैं यहाँ b लिखूंगी क्योंकि हमें भी पता नहीं है ना कि कौन, एनी वन साइड बोली है, h एंड b अगर आप यहाँ लोगे तो आपको यहाँ एंगल बिटवीन h एंड b प्रूव करना है। तो व्हाट इज टू शो, दिस एंगल इज π/3, ये एंगल शो करना है हमें h एंड p के बीच की ये एंगल π/3 है। तो क्वेश्चन की रिकॉग्निशन पूरी हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब तो हमने रिमूव करना है, हमें वेरिएबल्स, हमें सिंगल वेरिएबल में लेकर आना है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ हाइपोटेन्यूज और p में है, यहाँ b एंड p में है, तो आप पहले क्या करो कि पहले यहाँ से वेरिएबल, आप यहाँ से वैल्यू किसकी लेकर आओगे, p की,
तो यहाँ से b हटा दो, b को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b को हटा कर लिख लो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p की वैल्यू आप ऊपर से लेकर आओगे। p यहाँ से क्या हो गया, s माइनस एच, यस और नो, सम ऑफ लेंथ ऑफ। सो आप इस तरीके से देखो क्वेश्चन में आप प्रूव करोगे। आपने b एंड p लिया, ये आ गया आपका एरिया, s इज h प्लस p। अब हमने वहां चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए यहां से आप शुरू करो, s इज इक्वल टू h प्लस b। देखो उसी से भी ना हमारा पर्पस सॉल्व होगा नहीं। अगर हमने सिर्फ इतना रह गए तो अभी भी मेरे पास h और p दो वेरिएबल आ रहे हैं, अभी मुझे इस h से भी निजात पानी है। तो इसीलिए क्या करें, हम यहाँ पर इसको प्रूव ना करके इसके दो तीन बस आप h को रिमूव करो, जैसे भी आपने रिमूव करना है। तो रिमूव क्या करते हैं, हम इसको ना स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे स्क्वायर कर रहे हैं, देखो ये s इज इक्वल टू एच प्लस बी है। अगर हम इसको बोथ साइड ना स्क्वायर करें तो आपको बोथ साइड स्क्वायर करो, आपने लिया s इज इक्वल टू h प्लस बी और h हो गया आपका s माइनस बी। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sb इज इक्वल टू h, और h को आप लिख सकते हो ना p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जरूरत हमारी क्यों हो रही है, देखो ये b स्क्वायर हमारा बोथ साइड कट जाएगा और हमारा एक h और वेरिएबल खत्म हो जाएगा। बस उन दोनों को लेके हमने दो ही वेरिएबल रखने हैं। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई p की वैल्यू, और अब यहाँ पे b रहने दो और p की वैल्यू यहाँ चेंज कर दो अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2sp। तो यहाँ पर हमने यहाँ थोड़ी वर्किंग और की है, 3 स्टेप की। देखो गिवन ये था टू प्रूव और मैक्सिमाइज, ये है हमारी, ये हमें मैक्सिमाइज करना है एरिया। गिवन था सम, और एरिया मैक्सिमाइज करना तो मुझे एक ही वेरिएबल में रखना था, लेकिन अभी वेरिएबल मेरे पास 3 हो रखे थे, p, b और h। तो इसलिए हमें यहाँ एक स्टेप और करना पड़ा। हमने h की वैल्यू यहाँ से निकाली, h, और उसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का हमें पता है हाइपोटेन्यूज बाय द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो बेस स्क्वायर कट गया तो अब हमारे पास s और b ही रह गए, और s तो हमारे पास कांस्टेंट है ही है, और p की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो इसलिए हमें ये 2 स्टेप करने पड़े। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आओगे। और ज़्यादातर ना इन सभी क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ होती है, उसी के पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर अगर हमारे पास थर्ड वेरिएबल भी हो तो उसे ज़्यादा हो उन 2 इक्वेशन के बीच, तो हम उसे रिमूव करने के लिए पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब 90% क्वेश्चन में पाइथागोरस का ही यूज़ हो रहा है बेटे। अब देखो ये आपके पास फाइनल आ चुका है, s कांस्टेंट है और b आपका वेरिएबल है। बस अब देखो यहाँ आपके पास सम में टर्म नहीं है, प्रोडक्ट में टर्म है रूट स्क्वायर रूट, तो यहाँ a स्क्वायर करने से फायदा होगा। तो कर लिया a स्क्वायर, इसको z रखा, डिफरेंशिएशन, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव 0 लेस देन 0, तो मैक्सिमम आ गया। तो अब चलते हैं आगे। मैक्सिमम, अगर z मैक्सिमम आया तो उसका मतलब क्या हुआ, a मैक्सिमम हो गया। तो मतलब a मैक्सिमम कब है बेटे, जब बेस सम का थर्ड है, मतलब या s आपका 3b है। बस जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसे आप कहाँ पुट करते हो, गिवन में। गिवन से हमारी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुई थी, यहाँ s की जगह पे रख दो आप 3b। सॉल्व करोगे तो p भी आपके पास √3b आ जाएगा। तो p आ गया √3b और s 3b आपके पास है। देखो क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था आपको। अब आप एंगल पे आओ वापस। आपको यहाँ पर इन दोनों ने h प्लस b किया है। अगर h प्लस p करते तो हम ये वाला एंगल दिखाते, अगर h प्लस b किया तो ये एंगल है हमारा, एंगल बिटवीन दोज साइड जिनका सम s है। तो ये एंगल आपको प्रूव करना है। अगर ये एंगल है तो ये इसके लिए क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर है आपका। तो यहाँ से एंगल निकाला इन दोनों के बीच। देखो साइन से भी काम कर सकते हो, चाहे आप साइन अल्फा निकालो, चाहे कॉस अल्फा निकालो, चाहे टेन अल्फा निकालो। क्वेश्चन अगर टेन अल्फा निकालता है तो टेन अल्फा मीन्स p अपॉन b। p क्या होगा, √3b, आपने निकाली है वैल्यू, और b इज b, और b से b कटने के बाद टेन अल्फा क्या होगा, √3 अपॉन 1 मीन्स √3। तो टेन अल्फा √3 कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री होता है, एंगल π/3 होता है। बस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स अल्फा निकाला था, साइन अल्फा 1/3, तो हम यहाँ टेन अल्फा पे आ गए √3 पर।
इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है कि शो करो अल्फा इज 10 इनवर्स रूट 3, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप यहां भी पहुंच गए। क्वेश्चन ने एंगल पूछ लिया है, तो आप इसकी भी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो अल्फा पाई बाई 3 तक भी क्वेश्चन जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ऐसा छोटा ट्विस्ट बन सकता है बोर्ड्स के लिए, या अल्फा इज पाई बाई 3, तो ये आ गया अल्फा पाई बाई 3 आपके सामने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप डिफरेंट थे, ऐड हुए थे, कि ऐसे भी आपको यूज करने पड़ सकते हैं जब 3 वेरिएबल हो जाएंगे 2 इक्वेशन के बीच, तो आप किस तरह से एलिमिनेट करोगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन द सम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। तो हमारे पास बेटा 2 की कॉम्बिनेशन अलाउड है 12th में। कोन में स्फेयर, स्फेयर में कोन, या सिलेंडर में कोन, कोन के अंदर सिलेंडर, सर्कल के अंदर स्क्वायर, इस तरह की 2 फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इस टाइप का। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, यहाँ पहली फिगर की जो बात हो रही है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पहले ही बता देना बेटे कि यहाँ 2 फिगर्स हैं, तो देखो आप देख सकते हो सिलेंडर एंड स्फीयर 2 फिगर हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं पहले। हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R इज 2r अपॉन रूट 3। पहले बेटर है यहाँ फिगर बनाएं, जब भी कॉम्बिनेशन की तो पहले फिगर बनाओ। क्या किसमें इंस्क्राइब्ड है? सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो पहले एक सिलेंडर बनाते हैं, और ये सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है आपके स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो बिल्कुल फिट होगा, वो उसकी वॉल्स को टच करके जा रहा होगा। ये मेरा स्फीयर बना। ओके, यहाँ स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, बेटा ये गिवन है यहाँ पे, जो भी डायमेंशन दे रखी है, ये दे रखा है कि स्फीयर की रेडियस R, कैपिटल R है। तो आपका गिवन होगी यहाँ पर रेडियस R। इसी को आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे जिस डायमेंशन को क्वेश्चन ने दे दिया है। ये कांस्टेंट ट्रीट होगी पूरे क्वेश्चन के अंदर, विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट कैपिटल R। लेट शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर है h, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज h एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल r। तो ये आपको लेट करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। एंड दिस इज ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करना है बेटा इसमें? मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो आपको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यस, पाई r स्क्वायर h, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अगेन पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट पूरा होगा, रिकॉग्निशन हो गई क्वेश्चन की, कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है क्या क्या दिया है, और आपने जो लेट करने थे वेरिएबल वो लेट भी कर लिए, फिगर भी बना ली। अब देखो, अब हमने क्वेश्चन को, ये देखो ये है रेडियस r, ये r हमें स्फीयर की गिवन है, और ये मेरी टोटल h है। देखो स्फीयर के अंदर, क्योंकि स्फीयर सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से O से ये h/2 होगी। ये पूरी हाइट अगर h है तो O A, दिस पॉइंट इज B पॉइंट। O A B ट्राइंगल को देखो, O B आपकी h/2 होगी। तो अब बेटा आपको ना यहाँ पे O A B ट्राइंगल का यूज करना है। क्यों यूज करना है? मुझे यहाँ से r या h में से एक वेरिएबल रिमूव करना है, और मुझे इस रेडियस r का यूज करना है, कांस्टेंट है। तो देखो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास। और हम कैसे यूज करेंगे? वहां से देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर बनेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। r स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये यूज करना है बेटा आपने। गिवन से मार्क दिस इक्वेशन 1,
आपने जो ट्राइंगल से बनाई इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हो आप फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आपके पास क्वेश्चन बनेगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। आपने आर स्क्वायर की सीधी वैल्यू रख दी, ये रहा आर एच। बस नाउ सी अब क्या क्वेश्चन पूरा आपका सिंगल वेरिएबल में है या नहीं? आर कांस्टेंट है, हमने ट्रीट करना है, क्वेश्चन ने दे रखी है हमें वैल्यू आर, तो बस एच वेरिएबल है, तो v को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, h वेरिएबल है तो निकालोगे क्या dv बाई डी एच। बस अब क्वेश्चन हो गया आपका आगे। आपको पता है आगे कैसे करना है क्वेश्चन। ये देखो ये वैल्यू हमने निकाल ली, मल्टीप्लाई किया, dv बाई डी एच 0 रखो, h क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, उस पर डबल डेरिवेटिव चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है। डबल डेरिवेटिव चेक करने के बाद में आपको पता चल गया कि वॉल्यूम आपका क्या है, मैक्सिमम। सो आपको यही प्रूव करना था ना कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया आपका। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज 2r अपॉन रूट 3। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। बेटा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड भी करना है आपने, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू आप कहाँ रखोगे। फंक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बना है, जो वॉल्यूम v है आपका, ये देखो आपके पास वैल्यू यहाँ से किसकी आ गई, क्रिटिकल पॉइंट से h की वैल्यू आई है, ये है वॉल्यूम v आपका। इसमें आप h की वैल्यू ये 2r अपॉन रूट 3 रख दोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल वॉल्यूम बनेगा। ये आपने यहाँ पे निकालनी है। सो v इज पाई r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू रख दो 4r स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ h स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने, अपॉन 4 अपॉन इंटू में 4 और h की वैल्यू और रख के, इसको मतलब पूरा आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे h की वैल्यू अंडर रूट में 4r स्क्वायर अपॉन 3, इस पूरे को सॉल्व करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके वॉल्यूम की वैल्यू बनेगी। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो आपकी वैल्यू आपके पास में आएगी सॉल्व होकर 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट 3, वो आपका आंसर होगा बेटे। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपको? आई एम श्योर यस। तो बेटा ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैंने हमेशा बोली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन का। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। पहले फिगर को जांचो, फिगर क्या है आपके पास में उसको ध्यान दो। आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है और वो इंस्क्राइब्ड है स्फीयर के अंदर। ये टच होके जाएगा बिल्कुल ऐसे, जो एकदम एग्जैक्ट फिट हो सके। हम उस फिगर की बात करते हैं, रफ फिगर है बेटा ये। ओके, शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है आपने, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। बेटा देखो यहाँ पे ये स्मॉल r गिवन है, ये रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ स्फीयर जो दे रखी है वो स्मॉल r में दे रखी है, और ये स्मॉल r आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर स्मॉल r दे रखा है आपको ऑलरेडी, तो आप जब लेट करोगे कौन के डायमेंशंस वो डिफरेंट करोगे, आप स्मॉल r दोबारा लेट नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए हम लेट कर लेते हैं कैपिटल R एंड कैपिटल H। सो लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ कॉन एंड कैपिटल H बी द हाइट ऑफ कॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि आप किस तरह से लेट करोगे, स्मॉल r नहीं लेट कर सकते हो आप, क्योंकि स्मॉल r किसकी रेडियस है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, वो स्फीयर का रेडियस गिवन है आपको। ओके, आपने जज कर लिया क्या लेट करना है, फिगर क्या है आपकी
और रेडियस ऑफ आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब आपको इसमें जो चेंज करना है वो क्या है बेटा, आप देखो सपोज ये सेंटर है आपका स्फीयर का और ये हाइट है, इस हाइट में से अगर आप इस सेंटर से यहाँ तक देखो ओ से ए तक, तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई आपकी, मींस ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है कैपिटल आर। रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर में गिवन है, स्मॉल आर। तो जो ये हाइट है आपकी, आपको ये छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, देखो इस छोटे ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। ये है कैपिटल आर, आपकी रेडियस है कोन की, ये स्मॉल आर आपकी रेडियस है स्फीयर की। तो ये हाइट कितनी बचेगी, देखो दिस इज आर, ओ इस पॉइंट से ओ से ए तक का पॉइंट आपका है आर। तो सपोज ये पॉइंट मैंने लिया बी, ये पॉइंट है बी, तो बी ओ बी कितनी बची, ये आपके पास में बच गई आर माइन, टोटल एच है, एच माइनस आर बच गई है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको बेटा, यहाँ पर ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसकी ही जजमेंट आपकी अलग अगर सही होगी तो आपका सही होगा बिल्कुल। कैपिटल एच माइनस आर, हमने हाइट में से ये रेडियस माइनस कर दी, तो ये जो हाइट है मेरे पास दिस इज एच माइनस आर, कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर। अब इसमें आपको पाइथागोरस लगानी है। अब क्यों लगानी है हमने, जो हमें गिवन होता है, जो भी पैरामीटर गिवन है, हमें यहाँ पैरामीटर स्मॉल आर गिवन है, तो ये कांस्टेंट स्मॉल आर कांस्टेंट, एच और आर, इनमें से हमारा एक एलिमिनेट हो जाएगा ना, फिर तो फिर वही लगाओ पाइथागोरस। देखो मैंने कहा था ना पाइथागोरस बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ जब पाइथागोरस लगाओगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। आर आपका रेडियस आपने लेट किया और एच आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप पहले, प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। अब देखो ये एक आर स्क्वायर कट गया और आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, आर स्क्वायर की निकालो, सीधा सीधा आर स्क्वायर आ रहा है, तो आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा। सभी क्वेश्चन जितने भी मिक्स्ड फिगर वाले क्वेश्चन है ना, उसमें गिवन क्या है और आपको एलिमिनेशन, आपके अगर ये 3 स्टेप सही हो जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन सही है। इन 3 स्टेप पे ना पूरी वर्ड प्रॉब्लम बेस करती है, लाए करती है, डिपेंडेंट है, इन्हीं को ही आपने बहुत समझदारी से वर्कआउट करना है। ये रिकॉग्निशन थी, ये गिवन की हेल्प से मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। नाउ जस्ट आई एम कीप पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू में h। अब देखो यहाँ पर r स्मॉल r आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, केवल h बचा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो अब बस ये वॉल्यूम आपका फंक्शन है, यहाँ से आप निकालो dv/dh, मल्टीप्लाई करो और dv/dh निकालो, इक्वल टू 0 रखो एंड सो ऑन। देखो ये आ गया फंक्शन आपका, ये वैल्यू रखी है आपने, यहाँ तक मैंने किया है आपको पीछे, मल्टीप्लाई करके आपने डेरिवेटिव किया, 0 रख के आपके पास, क्योंकि h वेरिएबल चल रहा है तो h क्रिटिकल पॉइंट r की टर्म्स में आ गया। डबल डेरिवेटिव लेस देन आएगा ही, क्योंकि आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, लेस देन मीन्स मैक्सिमम, इस पॉइंट पे हो गया मैक्सिमम। क्वेश्चन ने पूछा था ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्फीयर। इन टर्म्स ऑफ स्फीयर का मतलब स्मॉल r की टर्म में, कैपिटल R की टर्म में नहीं, स्मॉल r की टर्म में। तो वॉल्यूम जब आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, तो यहाँ से ये h रिमूव कर दो, ये जो आपके पास है सिर्फ स्मॉल r में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू 4r/3 आ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ स्फीयर का मतलब r होना चाहिए, तो यहाँ और यहाँ h की वैल्यू आप रखोगे, सॉल्व करोगे तो देखो ये आ गई सारी वैल्यूज आपकी सॉल्व हो करके। अब इन टर्म्स ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आपका सॉल्व होकर ये वैल्यू आई, 32 को लिखा 8 × 4 और 81 को लिखा 27 × 3, तो ये वैल्यू बन गई 8/27 और ये बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में कि इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, और आप एनसीईआरटी में देखोगे ना ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछ रखा है डायरेक्टली,
कि शो करो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन बुक में गिवन है आपको, और मैंने यहाँ ट्विस्टेड फॉर्म दिया है कि क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तब भी क्वेश्चन यही है आपका, चेंज्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो अल्टीमेटली मैंने इस एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं कि क्वेश्चन की किस तरह से ट्विस्टेड स्टेटमेंट की जाती है और क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। आपको भरमाया जाता है कि ये क्वेश्चन अलग है, बट नहीं, एक्चुअली वो क्वेश्चन वही है। आपको सिर्फ पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को समझो, बस क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं चलते चले जाओ। पहुंच गए आप कि स्फीयर के टर्म में वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। स्फीयर का बड़ा होगा, कॉन का वॉल्यूम ऑब्वियसली छोटा होगा, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, पर कितना छोटा होगा, 8/27 टाइम्स छोटा होगा। हो गया प्रूव हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका दिल्ली 2016 में आ चुका है, ऑल इंडिया 2014 में आ चुका है, और फॉरेन में 2012 और 13 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आपका। और प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया था 2r/√3 वाला, वो वाला भी दिल्ली 2014 में और ऑल इंडिया 2014 में आ चुका है। चलिए अगेन, जो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर है ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height small h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of that of the cone and the greatest volume of cylinder is this। ओह, क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है इतना भारी भरकम क्वेश्चन है, बट बेटा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो और सारे पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो करें। सबसे पहले भाई रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन को जान लो, जानने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी फिगर आपकी हैं, देखो सिलेंडर किस में इंस्क्राइब्ड है, कॉन के अंदर। तो सबसे पहले सिलेंडर बनाओ और कॉन में उसे इंस्क्राइब्ड कर दो। दिस इज द सिलेंडर और ये आपका कॉन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये बन गया। ओके, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h। बेटा यहां ध्यान दो, हाइट h, कॉन की हाइट h गिवन है। तो हमें जो सिलेंडर के लेट करने पैरामीटर्स वो हम कैप्स में ले लेंगे या कुछ भी डिफरेंट लेंगे। मैंने लेट कर लिया h एंड r, पहले इतना लेट कर लो आप। क्वेश्चन की शुरुआत होगी, लेट h एंड R बी द, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है आपकी, कोन की दे रखी है, और ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और ये H हाइट ऑफ कोन कांस्टेंट ट्रीट होगी क्योंकि ये क्वेश्चन ने दे रखी है वैल्यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, दिस इज टोटल H। अगर हम O, मैं यहां से ये A O A B, अगर ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ट्रायंगल को इसको हम कंप्लीट करते हैं बेस में, ठीक है। तो देखो ये हाइट h है, O A B, अब मैं इस पॉइंट को C नाम दे रही हूँ, इसको D नाम दिया। अब इस ट्रायंगल में O C D में अगर हम ध्यान से देखें, पहले हम देखते हैं हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, गिवन का हम बाद में यूज करेंगे। क्या मैक्सिमाइज करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने ग्रेटेस्ट प्रूव करना है। 1/3 पाई, सिलेंडर के हमने डायमेंशंस क्या लेट किए हैं, R कैपिटल में और H कैपिटल में। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई R² H। ये आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। यस, तो मैक्सिमाइज ये करना है। दिस इज गिवन, लेट कर लिए, फिगर हमने रिकॉग्नाइज कर ली। तो उसके बाद शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in right circular cone of height h and semi vertical angle alpha। एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन ने, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। एक h कांस्टेंट है, एक अल्फा कांस्टेंट होगा। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, h एंड अल्फा बोथ आर कांस्टेंट, इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन। मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है हाइट ऑफ कोन जो है 3 टाइम्स है
या हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच को शो करना है कौन की 1/3, क्योंकि जो सिलेंडर अंदर है ये पूरी हाइट ये स्मॉल एच कैपिटल एच से 3 टाइम्स बड़ी है, ये प्रूव करना है आपको। दिस इज टू शो। ओके, तो हमें यहाँ से ना r² हटाना होगा, क्योंकि हम तभी h में फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमें h को शो करना है। ऐसी भी जजमेंट, क्योंकि r और h दो वेरिएबल है हमारे पास, एक हटाना ही हटाना है, तो कौन सा हटाना हमारे लिए यूजफुल है? r² हटाना यूजफुल है, क्योंकि हमें h पे जाना है। और यदि आप h हटाते हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये ध्यान, वही स्टेप कि हम किस तरीके से उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा क्वेश्चन की रिकॉग्निशन के बाद ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम कैसे हटाएंगे इसको। इस ट्रायंगल के अंदर आप ध्यान से देखो, आपको गिवन है ये एंगल अल्फा, जिस लाइन पर ये हाइट कितनी होगी, OC कितनी होगी बेटा आपकी, OA स्मॉल h है और CA h है, तो ये हाइट आपकी OC स्मॉल h माइनस कैपिटल H होगी या नहीं। मैं ट्रायंगल OCD के पैरामीटर्स को देख रही हूँ ध्यान से। OCD के पैरामीटर्स, अगर ये मेरा OCD ट्रायंगल है तो ये स्मॉल h माइनस कैपिटल H है, ये कैपिटल R है और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे ना पाइथागोरस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ OD नहीं पता, मुझे सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा पता है। तो यहाँ जब आपको एंगल अल्फा दे रखा है तो रिमूव करने के लिए आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करोगे। अब ये देखो इन दो साइड को बनाकर एंगल अल्फा किस टर्म में जाएगा। एंगल अल्फा बन रहा है h माइनस कैपिटल H, इस साइड पे बन रहा है आपका OCD ट्रायंगल में OC पे बन रहा है, तो ये इसका बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर R है। इस ट्रायंगल के अंदर R अपॉन h माइनस H परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, दिस इज बेस साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा होगा या नहीं। आई एम श्योर आपको सबको बात समझ आ गई। यस, तो यहां से आप R निकाल लो अपना। R निकालोगे तो देखो स्मॉल h गिवन है, अल्फा गिवन है, एक ही वेरिएबल रहा ना पैरामीटर, तो R हमारा रिमूव हो जाएगा, तो R हमारे पास आ गया h माइनस कैपिटल H इंटू में tan अल्फा। अब ये वैल्यू अब यहाँ पुट करो, ये आपका बना फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट। तो जो प्रूव करा था इक्वेशन 1 बनाते हैं हम, गिवन से इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 रख दो वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 पाई, r² की वैल्यू हो गई स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा, ये मैंने r² रख दिया, और इंटू में h जो वहाँ ऑलरेडी है। बस हो गया मेरा काम खत्म। h और अल्फा कांस्टेंट, h सिंगल वेरिएबल में आ गया फंक्शन। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो 1/3 पाई tan स्क्वायर अल्फा तो आपका है कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले को ओपन कर लो, a² प्लस b² माइनस 2hh, और इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो h³ h², ये सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन आपका। अब यहाँ से निकालना है dv/dh। अब काम खत्म क्वेश्चन का, अब तो बड़े आराम से क्वेश्चन जाएगा। यहीं तक का मेन काम है, अगर ये समझ आ गया तो काम खत्म। देखो ये बन गया फंक्शन, ये रहा यहाँ पर, निकालो इक्वल टू 0 रखो, डिफरेंशिएशन करो। अब यहाँ से देखो दो इक्वेशन बन रही है, यहाँ भी ध्यान रखना। देखो कैपिटल H वेरिएबल है हमारा, स्मॉल h हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3h² में वेरिएबल बनेगी इक्वेशन। h² वेरिएबल है, ये स्मॉल वाला कांस्टेंट है, ये ध्यान रख के आप इसको x² h होगा, ट्रीट होगा यहाँ पर, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करो, फैक्टराइज करो। यहाँ से दो आपको फैक्टर्स मिले और इससे आपका h = h आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास आ गया ये 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज 0, इम्प्लाइज हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ द कॉन। ये आपको प्रूव करना था। देखो ये टू शो पार्ट था ना, आपको यही प्रूव करना था, और यही आपके क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू आ गई है आपकी। डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, लेस देन आ गया। अब आपको यहाँ क्या और प्रूव करना था, ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। तो ये आपने निकाल के रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकाल रखा है,
बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पे कैपिटल एच की जगह पर स्मॉल एच की तरफ में वैल्यू रख दो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा गिवन पैरामीटर की टर्म में, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, एच हमें गिवन है, तो इसीलिए आप अपनी इस इक्वेशन में से कैपिटल एच रिमूव कर दो, इसमें करो या इसमें कर दो, ये ज़्यादा इजी है। इसमें से कैपिटल एच की वैल्यू h/3 रखोगे तो ये आ जाएगा सीधा आंसर आपके पास। बस जो प्रूव करा था 4/27 पाई h³ tan² अल्फा, हर जगह हमने वैल्यू रख दी h की, सिंप्लीफाइड एंड गेट द आंसर। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में आंसर होना चाहिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में ना वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स लिखना, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना, भूलना मत, क्योंकि इसके हाफ मार्क्स होते हैं आपके। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, एक और इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने हाइट प्रूव किया, अगेन देखो इस क्वेश्चन में भी हमें रेडियस प्रूव करनी है, वहाँ हमारी हाइट की रिलेशन थी, यहाँ शो दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड कोन के अंदर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन कोन, वहाँ हमने वॉल्यूम लेके चले थे, यहाँ सरफेस एरिया इंस्क्राइब्ड गिवन कोन में है, तो कौन गिवन है आपको यहाँ पर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। आपको ये प्रूव करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी कोन से हाफ है, वहाँ आपने हाइट 1/3 प्रूव की थी सिलेंडर की, या रेडियस हाफ प्रूव करने है, देखो यहाँ पहुँचना है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करोगे, सोल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल सामने है, सिमिलैरिटी से प्रूव किया है इसको। सिमिलैरिटी एक हिंट दे रही हूँ, ये दो ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल को सिमिलैरिटी लेकर हम चले हैं। यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा नहीं दिया ना बेटे, और ये स्लैंट हाइट है ही नहीं आपके पास। अब दो साइड का यूज़ करके आप कहाँ जाओगे, तो दो साइड का यूज़ करके एंगल तो है नहीं, तो हम यहाँ सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड इन ट्रायंगल ODE। तो आपने यहाँ सिमिलैरिटी का यूज़ करके एक वेरिएबल को रिमूव करना है, जो मेन पॉइंट है वो ये है, सिमिलैरिटी का यूज़ करके आपने एक वेरिएबल को रिमूव करना है, जो भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। बस 2 पॉइंट समझ आ गए, क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, आप आई एम श्योर आपके 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पलर के कवर हो गए हैं। अब जितने रिमेनिंग बचे हैं वो सब आपको ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग टू मच पेशेंट। थैंक